حضرت مسیح ابن مریم نے اپنی ساری زندگی کسی غیر قوم کو مخاطب نہیں کیا، کسی غیر قوم کے بندے کو بپتسمہ نہیں دیا، بلکہ وہ واضح فرماتے ہیں کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بیڑوں کے سوا کسی کے پاس نہیں آیا۔ یہ اپنی زندگی میں کہہ رہے ہیں۔ دوسری بات، حضرت مسیح قیامت کے بارے کہہ رہے ہیں، یعنی اس دنیا کے بعد قیامت کی بات کر رہے ہیں کہ تم 12 شاگردوں کے بارے میں کہ تم 12 تختوں پر بیٹھ کر 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے، یعنی قیامت کی بھی وہ خبر دے رہے ہیں کہ ان کا تعلق صرف بنی اسرائیل کے ساتھ ہے، غیر قوموں کے ساتھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مسیح علیہ السلام سے ایک ارشاد اعظم جھوٹا گڑھ کے ان سے منسوب کر دیا گیا۔ یہ ٹرانسلیشن ہے فور گاسپل کے نام سے، یہ سنائٹکس کا ترجمہ فور گاسپل کے نام سے ہوا ہے۔ 8 نمبر آیت پہ یہ انجیل ختم ہو جاتی ہے اور لکھا ہوا ہے کہ یہ انجیل یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کا آخری حصہ گم ہو گیا تھا۔ یہ آپ کے پاس موجود ہے۔ دوسرا، عمل ان کا، حضرت مسیح کا عمل بھی پر سوال مکمل کر رہا ہوں، وہی ہے، دوسرا نہیں۔ حکیم صاحب ایسے سر میرا یہاں مجھے سوال مکمل کرنے دیں، ارشاد اعظم مجھے انجیل میں اور اس کی میں دلیل دے رہا ہوں کہ مسیح کے عمل سے مسیح نہیں ہوا نا، مسیح کے عمل سے، مسیح کے بعد مسیح کے حواریوں کے عمل سے یہ ثابت ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بعد میں ایک شخص آتا ہے جو نہ مسیح کا رسول ہے، نہ مسیح کا شاگرد ہے، نہ اس کا کوئی مسیح سے تعلق ہے، وہ آ کے سب سے پہلا غیر قوموں کا رسول بنتا ہے مسیح کی تعلیم کے خلاف۔ بات آ گئی آپ کے 3 سوال۔ ہاں جی، تو یہ پھر 18 ہو گیا آپ کے سوال، میں تینوں کا جواب دیتا ہوں۔ کمال ہو گئی ہے۔ کون سے 3 ہیں جی؟ کون سے 3 ہیں؟ ایک یہ ہے کہ پولوس کی رسالت مشکوک ہے، ایک ہے یہ کہ ارشاد اعظم بائبل میں موجود نہیں ہے، تیسرا یہ ہے کہ مسیح نے سر وہ میرے دلائل ہیں کہ مسیح نے غیر یار آپ دلائل سوال میں میرے دلائل ہیں۔ چلے مجھے کوئی قانون بتا دیں کہ سوال کے اندر کیوں سوال کے اندر دلائل ہی ہوتے ہیں اور کیا ہوتا ہے؟ 3 دلائل۔ میں مسیح کا عمل بتا رہا ہوں آپ کو، مسیح کا یہ عمل ہے، حواریوں کا یہ عمل ہے۔ آپ کمال کر رہے ہیں، آپ کہیں کہ 3 سوال ہیں، آپ ایسا کریں، آپ یہ کہ تینوں کا بھائی آپ 30 بنا لیں، سو جواب مجھے کیا ہے؟ کسی ایک سوال کا جواب، کسی ایک سوال کا کو جواب دیا آپ نے، کسی ایک کا بھی۔ آپ کو ان 3 میں سے کس کا جواب چاہیے؟ سر ایک سوال ہے میرا۔ نہیں ایسے نہیں سر میرا ایک میں سوال، تینوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ تینوں کون سے؟ یار میں بتا رہا ہوں کہ ارشاد اعظم غائب ہے، موجود نہیں ہے، ٹیکسٹ کا حصہ نہیں ہے، یہ ایک سوال ہے۔ یہی سوال ہے، یہی سوال ہے، باقی سوال نہیں ہے۔ باقی اس کی تائید میں ہے کہ مسیح کا عمل اس کی گواہی دیتا ہے کہ مسیح نے کبھی غیر قوموں کو تبلیغ نہیں کی۔ مسیح کے حواریوں کا عمل گواہی دیتا ہے کہ انہوں نے اس کی کبھی تبلیغ نہیں کی۔ مسیح نے آخرت کے بارے بتایا ہے کہ 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے، اگر ساری دنیا کے لیے آتے تو سب کا انصاف کرتے۔ یہ تائیدی والا جاتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا سر، ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، یہ تائیدی والا جاتے ہیں۔ میں تینوں کو ہی ایڈریس کر دوں گا، آپ کریں ایڈریس، لیکن آپ کو سکھانا بھی مقصد ہے کہ جب ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں تو اس کا طریقہ کا ایک وقت میں ایک سوال۔ میرا خیال ہے آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ سوال کے ساتھ جو تائیدی باتیں ہوتی ہیں وہ حوالہ جات ہوتے ہیں، 3 سوال نہیں ہوتے۔ 3 سوال اگر آپ کے لیے اتنے مشکل ہیں، جواب اتنے مشکل ہیں، تو آپ کیوں پریشان ہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں، آپ کہیں جی یہ میں نے 25 کا جواب دے دیا، میں کہوں گا ٹھیک ہے جی ہو گیا۔ میں نے نہیں کہا کہ یہ مشکل ہے، میں نے کہا میں تینوں کا جواب دیتا ہوں، لیکن پھر کاؤنٹنگ 3 کریں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں کیوں کاؤنٹنگ 3 کروں، میرا سوال ایک ہے۔ ارشاد اعظم کی جو بات کہہ رہے ہیں نا، یہ جناب علی ارشاد اعظم نسخوں میں موجود ہے، ہو سکتا کوئی نہیں موجود۔ یار اب مجھے بولنے دیں، یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ نہ آپ کو گریک آتی نہ آپ کو عبرانی آتی، آپ کہہ رہے کوئی نہیں موجود۔ یہ متی کی انجیل میں آخر میں ہے، تو وہ جب پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے وہ اینڈ والا حصے وہیں پہ انگوٹھا لگتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ نسخوں میں سے وہ مٹ گیا ہو، لیکن اکثریت میں موجود ہے۔ یہ کہنا کہ وہ ارشاد اعظم موجود نہیں ہے۔ اور دوسری بات سن لیں کہ ارشاد اعظم صرف متی کی انجیل میں نہیں ہے، یہ بھی آپ کو کسی نے غلط بتا دیا، 4 اناجیل میں ارشاد اعظم موجود ہے، اعمال کی کتاب میں ارشاد اعظم موجود ہے۔ اور ابھی نہ بولے نا، حوالہ دے دینا، اگر میں دے دوں تو بات ختم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ نہیں ٹھہرو
लूका वाला चलें, निकाले जी आप नहीं नहीं ठहरो, हवाला देने हवाला नहीं फर्स्ट यार, कोई गल नहीं यार, हाँ ये फर्स्ट क्लास भी होगा। नहीं कोई क्रॉस नहीं सर, तो फिर हवाला की हवाला मैंने मांगा है यार, ये कौन सी है बात ही नहीं नहीं, फिर किसी एक अंजील में भी नहीं है, इसलिए मैंने मांगा है कि आप गलत बयान नहीं कर रहे हैं, इसलिए हवाला मांगा मैंने। ये क्रॉस ही होता है। नहीं मैंने हवाला सारा भाई ये क्रॉस होता है। सारा हवाला तलब किया है, आपके दावे पे हवाला तलब किया सुने है। सुने दावा सुने। फिर उसने उनसे कहा कि ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि ज़रूर है जितनी बातें मूसा की तौरेत, नबियों के सहीफ़ों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी गई। फिर उसने उनका जहन खोला ताकि किताब मुक़द्दस को समझे, और उसने कहा यूँ लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, यरूशलेम से लेकर यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की माफ़ी की मुनादी मसीह के नाम से की जाएगी। आप कैसे कहते हैं कि नहीं है? ये इरशाद आज़म पढ़ दें जरा, यही इरशाद इरशाद आज़म पढ़ दें, आप मती पढ़ें जरा, 28-19 पढ़े मती। एक मिनट सर नहीं ना ऐसे ना करें ना, आप, आपको इरशाद आज़म ये का गलत मतलब बात क्या है ना। पता? नहीं मेरी बात इरशाद आज़म सुनिए। का मतलब है कि अंजील की मुनादी करो, नहीं सब कौमों में अंजील की सर मुनादी करो, नहीं, यही बात है। नहीं पढ़ दें आप, इरशाद आज़म पढ़ दें जरा। यही आपको बात इरशाद है। आज़म का भी नहीं पता, ये भी नहीं पता आपको, अच्छा, इरशाद मुझे आज़म नहीं का पता। नहीं पता मैं उसका आपको। टीचर हूं, मैंने सर किताब नहीं लिखी पता है। आपको, आपको आपने पता ही लफ्ज़ सुन नहीं। लिया। आप कमूसल किताब देख लें, अब 10 कमूसल किताबें मेरे किताब वाले को क्या किसी पता? में इरशाद आज़म आप निकाले के इरशाद आज़म कौन सा है, वो आपको मती का हवाला देगा, किसी यार, अंजील का देखिए, हवाला वो नहीं इस देगा, सब्जेक्ट वो है से ही बाहर नहीं। है। क्या वो इस सब्जेक्ट इसमें है बाप बेटा रूल कुदस के नाम के साथ सब कौमों को बपतिस्मा दो, पढ़ें यूहन्ना से, यूहन्ना से पढ़ें सर, पढ़ें यार, वो है वो भी फार्मूला नहीं है, क्या वो था? भी नहीं है, यहाँ नहीं वो है है, फार्मूला क्या यहाँ है जो नहीं आप है, बात कर रहे हैं? वो आपको बात सवाल वो का नहीं पता, फार्मूला सवाल वहाँ क्या है? यहाँ नहीं है। अच्छा, आपने क्रॉस वो कर नहीं लिया है, ना इस पे? हाँ जी पढ़ दे, कोई नहीं निकला इरशाद आज़म यूहन्ना से। ये क्या है? दूसरी अंजील का ओ भाई, हवाला दे। इरशाद अब आपको अच्छा, इरशाद आज़म का दूसरी पता, आपको दूसरी क्या अंजील का बताऊं? हवाला दे, सब में चारों में, दूसरी इमाल की किताब में भी है। सर पढ़ दे ना, लूका से पढ़। यार, आपको जब जिस बात लूका का से पता पढ़ नहीं दे, है, मकदमारी करने पता वाली बात मुझे है नहीं, ना। कमाल वाली बात है भाई, मैं सीखने आया जब आपको इरशाद आज़म का मुझे नहीं पता, मैं सीखने आया हूँ, मुझे नहीं पढ़ दें आप, लूका से पढ़ दें। इमाल, ये लूका में तो पढ़ा क्या कि ये यूहन्ना से पढ़ा आपने? और नहीं हो भाई, कहाँ लूका से पढ़ा है? अच्छा चले, लूका से पढ़ा। अच्छा चले, यूहन्ना मरकज वाला याद है तो वाला देखें। अच्छा सुने तो नहीं मरकज से वाला पढ़ दें, वो निकाल रहा हवाला, अच्छा। पढ़ दूंगा। अच्छा, तो मेरी बात सुने, ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये गैर कौम के लिए नहीं जी, सिर्फ सामरियों के लिए था, ये भी ये मैं नहीं कह रहा, सुने मसीह फरमा रहे हैं। सुने। और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने इंजील की मुनादी करो। इरशाद आज़म है, इरशाद, अब सुन ले मेरी बात, अब मेरी बात सुन, बनी इसराइल अब आपका सेकंड क्रॉस आ गया। सेकंड क्रॉस आ गया, सुन ले, क्यों घबरा रहे हैं यार, इतना क्या हो गया? आप भूल जाते हैं क्यों? ना। मैं नहीं भूल जाता, आपने कहा जी चारों अंजीलों में इरशाद आज़म मौजूद है। हाँ, मैं कह रहा आप पूरी मैं कह रहा मसीहत बाल की किताब में सर सुन लें, पूरी मसीहत की आप मुखालफत कर रहे हैं, सब की। इरशाद आज़म सिर्फ मती 1928 में है, कहीं और कहीं जनाब इरशाद आज़म यार, आपको आप नहीं सुन पता, लें, माफी आपको नहीं मांग लो पता, इस बात की। आप माफी मांग लें, सुन लें सुन लें, मैं आपको यार नहीं, मेरी बात पूरी होने दें भाई, अगर आपने मेरी बात नहीं ना सुननी तो आप बात खत्म कर दें। सुन लें मैं बताऊं, वो इतने मैं, हाँ मैं सुन लेता हूँ। 6 मिनट से ज्यादा हम जा रहे हैं, आप बात यहीं से जारी करें। हाँ। लेकिन आप सवाल करें जी जी, मेरा सवाल है, सुन ले, मुख्तसर वो जो बात है जी, सारी खलक में जाके इंजील की मुनादी करनी। सुने पादरी साहब, ये चक्कर दे रहे हैं, चक्कर सुन ले। बनी इसराइल के जो गुमशुदा कबीले थे वो सारी दुनिया में बिखर चुके थे, मसीह के शागिर्दों ने बनी इसराइल की खोई हुई भेड़ों की तरफ जाना था, वो सारी दुनिया में वो जहाँ भी हैं उनकी तरफ जाना था, ये नहीं कि गैर कौमों की तरफ जाना था। नहीं, किसी एक हवाले में आप दिखा दें कि जनाब उन्होंने बनी इसराइल के अलावा गैर कौमों की तरफ जाना है। मैंने सुने साहब, मेरी बात मुकम्मल होने दें प्लीज़, ठीक है। मैंने आपको बताया मसीह का अमल इस बात के ख़िलाफ़ है, मसीह की तलीम इस बात के ख़िलाफ़ है। मसीह ने क़यामत की बाबत बताया कि सिर्फ 12 कबीलों का तुम इंसाफ करोगे 12 तख्तों पे बैठ के। अगर उन्होंने सर सुने सर एक मिनट प्लीज़, मेरी बात मुकम्मल होने दें सर, मेरी बात मुकम्मल होने दें ना, नहीं वो मेरी बात मुकम्मल होने दें।
2 منٹ ہیں آپ کے نا, تو آپ تو 7 منٹ تو نہیں بول سکتے آپ. چلیں آپ میں نے بولنا ہے جواب, میں نے دینا. آپ 30 سیکنڈ نہیں, آپ نے 7 منٹ نہیں بولنا, بولے آپ کے جواب آپ دے نہیں رہے. حکیم صاحب جی, آپ 30 سیکنڈ میں سیکنڈ کراس کو سوال میرا یہ ہے, سوال میرا ہو یہ گیا, ہے مجھے کہ یہ بولنے دیں. قدیم ترین کسی نسخہ میں سن لیں, یہ سارے سن لیں, بائبل کا جو قدیم ترین نسخہ ہے متی کی انجیل سے, مجھے یہ باپ بیٹا روح القدس کے نام پر ساری دنیا کو جا کے بپتسمہ دو, بائبل کے قدیم ترین نسخہ سے آپ یہ ثابت کر دیں, میں جناب آج بپتسمہ لینے کو تیار. تو میں نے تو آپ کو بتا دیا. نہیں بتا کیا دیا, آپ نے دکھانا ہے مجھے. اچھا چلے ٹھیک ہو گیا. یہ دیکھیں, یہ میں نے فوٹو کاپی آپ کے لیے. اور یہ پتہ نہیں آپ نے کس کی فوٹو کاپی کس کی کر ہے؟ لی, نہ آپ کو انگریزی آتی, نہ آپ کو گریک آتی, نہ آپ کو ہیبرو آتی, پتہ نہیں. آپ کو تو ککھ بھی نہیں آتا, آپ کو تو ارشاد اعظم بھی نہیں آتا. اچھا, آپ کو تو ارشاد اعظم بھی نہیں آتا. بھائی آپ نے ایک بات کا جواب آپ نے نہیں دیا, ایک بھی بات کا جواب, کہ مسیح یسوع, ایک بات کا بھی جواب نہیں. بولنے دو نا. جی, مسیح یسوع نے یہ عالمگیر مشن جاری کیا, یہ جو ارشاد اعظم آپ کہہ رہے, اس میں کہا کہ ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو, اور جو جہاں یہ کہا نا کہ سامریوں کے کسی گاؤں میں نہ جانا, اس وقت شاگردوں کی تربیت مکمل نہیں تھی. جب تربیت مکمل ہوئی ہے تو کہا کہ جب تک عالم بالا سے تم کو روح القدس کا لباس نہ ملے یہیں ٹھہرے رہو. اور اعمال 1:8 میں لکھا کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت اور جرت پاؤ گے, اور پھر تم. سر جی یہ میری تشریح آپ کی جو ہوئی, مجھے تشریح سر نہیں چاہیے, یہ جواب ہی نہیں یار, میرے سوال کا جواب ہی. حکیم صاحب جواب جی دے دیا نا, ارشاد اعظم موجود ہے, پوری بائبل ارشاد اعظم سے بھری پڑی ہے, مشن سے بھری پڑی ٹھیک ہے بھائی صاحب, سیکنڈ وہ جو بھری پڑی ہے میں جواب دے چکا ہوں, انہوں نے دنیا میں جانا. سنائٹیکس میں یہ 28:19 موجود ہے, یہ لکھا ہے, یہ مینیوسکرپٹ ہے اور یہ اوریجنل ٹیکسٹ جو ہے اس کی. یہ کیا ہے 28:19 یہ سنائٹکس ہے, یہ کون سا سنائٹکس؟ تو سنائٹیکس کو آپ کچھ نہیں سمجھتے. کیا یہ سنائٹکس نہیں ہے جناب, نہیں ہے یہ سنائٹکس. سنائٹکس نہیں ہے, کیا سنائٹکس ہے, کیا سنائٹکس؟ اور نہیں, او بھائی رہنے دو یار, او یار رہنے دو, آپ چھوڑو ان کو, کیمرے میں دکھاؤ. کیا کیمرے میں دکھاؤ؟ پادری صاحب سنیں, 1 منٹ سنیں, یہ سنیں جی میری بات سنیں. میں نے آپ سے پہلے کہا تھا, آپ نہ لیں, اسے یہاں بٹھائیں, وہ مجھ سے ڈیبیٹ کرے. ہاں جی, میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں, سنیں, میں پھر سر میں آن دا ریکارڈ آپ سے کہہ رہا ہوں, میں آن دا ریکارڈ آپ سے کہہ رہا ہوں, سنیں, میں رک جاتا ہوں, کل بھی رک جاتا ہوں, پرسوں بھی رک جاتا ہوں. سنائٹکس کا نسخہ منگا دیں آپ, مجھے اس میں سے دکھا دیں. میں نے چیلنج ہے کہ آپ مجھے یہ دکھا دیں اس میں سے, ٹھیک ہے جی, میں بپتسمہ لے لوں گا. اس سے بھی بڑی کو بات ہے, اس سے کوئی بڑی بات ہے, براق اس سے بھی بڑی کو بات ہے. کیا براق, کیا براق, کیا براق, حکیم صاحب, کیا براق, کیا براق جس پہ گئے تھے آسمان میں, وہ دکھایا. پادری صاحب میری بات سنیں, حکیم صاحب حوالہ دے دے کس کو آپ کا, کیا کہ براق ہے, حکیم کوئی صاحب, جانور بھی ہے, دکھا دیں. حکیم صاحب, پادری صاحب چلیں, برائے مہربانی حکیم صاحب, برائے مہربانی. پادری صاحب آپ بری طرح لاجواب ہیں, حکیم صاحب ایک سوال کا جواب بھی آپ نے نہیں دیا. مطلب میں اجرا والی لینگویج میں جواب دوں پھر ٹھیک ہے, اسلامک سافٹ ویئر کے مطابق جواب دوں پھر ٹھیک ہے, جی دیں, علمی بات کر رہا ہوں, یہ ٹھیک نہیں. علمی بات یہ ہے کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ, اب سن لیں مجھے بٹھایا کہ مجھے آپ یہ قدیم ترین نسخہ سنائٹکس سے یہ دکھا دیں. میں آپ کے کو 20 اسکالر پیش کر دیتا ہوں, انٹرنیشنل اسکالر پیش کر دیتا ہوں, آپ 2 کا نام کہ بھائی جو کہتے ہیں کیا مجھ سے طے کر لینا. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ مجھے آپ دکھا دیں, چلو ٹھیک, یہ مجھے آپ دکھا دیں, میں بپتسمہ لے لوں گا. یہ بات میں کرنا ٹھیک ہے, اس پہ ارشاد اعظم پہ کرنا چاہتا ہوں. کس پہ؟ تو آپ پڑھ کے آئیے گا پھر یار, آپ کو ارشاد اعظم کا پتہ نہیں کہ ہے کیا, پتہ مجھے نہیں. چلیں جی, بس کیا بات, 11 منٹ ہو چکے ہیں. میں اپنے ناظرین کے لیے بتانا چاہوں گا کہ حکیم صاحب نے جو سوال کیا, کراس سوال کیے, پادری صاحب نے اس کے جوابات دیے. اچھا, آپ کی اجازت سے جو 5 جگہ ارشاد اعظم موجود ہیں, جب ہم ایڈٹ کریں تو اس میں ان کے ریفرنس لگا دیں. اور نہیں ریفرنس کیا لگانے ہیں, مجھے روبرو بتائیں آپ, میں آ جاؤں گا. 3 حوالے تو دے کیا سر جی, نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کر رہے ہیں آپ, یہی حوالے لگائیں گے جو آپ کو بتائیں یہ ہم لگائیں. کیا باقی حکیم صاحب سوال کہ چاروں انجیلوں کے اندر. اچھا چلیں, حکیم صاحب سوال نمبر 15 پہ. جی چلیں جی, میرا سوال نمبر 15 ہے. جی میرا سوال نمبر 15 ہے,
अमाल अच्छा, 837 आप जी सवाल अपना जारी कीजिएगा जी, मेरा सवाल। लेकिन बराए मेहरबानी जब आप इस बात में होते हैं, टाइम ओवर हो रहा होता है, मैं सिर्फ इसलिए आप लोगों को रोकता हूँ, जी। ठीक है? तो बराए मेहरबानी जब आप नहीं टाइम ना ओवर करें, 12 तो बजे। हाँ क्रॉस सवाल भी आ जाते हैं, तो मैं जी। सिर्फ इसलिए आप दोनों मुनाजरीन की तवज्जो दिलाता हूँ कि वक्त को मुलूज़ ख़ातिर चलें, आप रखें, सिलेक्ट ना इसलिए करें, जो बराए सामने आ रहा पूछ चलें, लें। सवाल नंबर 15। अच्छा जी, मेरा सवाल नंबर 15 अमाल 837 फिर मेरा सवाल है। अच्छा, यसु मसीह को खुदा का बेटा बनाने के लिए बहुत सी बनावटी आयात बाइबल में शामिल की गई हैं जो हाशिए में, आज भी हाशिए में, और जो ओनली जीसस वाले हैं वो कहते हैं 125 आयात इन्होंने गढ़ के शामिल की हैं और वो हाशिए में आज भी मौजूद हैं। तो उनमें से एक ये है कि यसु मसीह खुदा का बेटा है, अमाल 837, ये मतन का हिस्सा नहीं है, ये आप तस्लीम कर चुके हैं। पादरी बरकतुल्लाह साहब तस्लीम कर चुके हैं कि जी ये कौन सी आयत की हाशिए बात कर के पस फिलिपस ने कहा अगर तू दिलो जान से ईमान लाए तो बपतिस्मा ले सकता है। इसने जवाब में कहा मैं ईमान लाता हूँ कि यसु मसीह खुदा का बेटा है। ये सवाल तो आपका हो गया। ये अल्फाज मेरा फिर वही सवाल है। ये कौन सी बात हुई सर, कि मेरा आपका वही फिर सवाल है। अब ये सवाल का नंबर कौन सा? मुझे जवाब नहीं दिया ना। सवाल नंबर 15 जी। मैंने आपको बताया ये टेक्स्ट का हिस्सा है, और वो जो यूहन्ना का आपने बताया था वो ठीक है, किसी हाशिए में थी, किसी ने डाल दी थी, और जब स्कॉलर्स ये भी टेक्स्ट का हिस्सा नहीं है। इसका कोई प्रूफ नहीं। सर नहीं, क्या ये पहला प्रूफ तो पादरी बरकतुल्लाह का मैं दे रहा हूँ। दूसरा प्रूफ ये जनाब हमारी कुतुब मुक़द्दसा का है। ये दो स्कॉलर तो अभी यहाँ मौजूद हैं। चलें, उसमें ये बताएं आप कहाँ इसमें लिखा से इसमें नहीं है, ये गलत है। ओ यार उसमें बताया ना, मैं दो उसमें वाला निकाला, फिर बताया। आपने बताएं उसमें क्या बताएं। उसमें लिखा हुआ मान लेंगे आप? आप दिखाओ तो सही नहीं, मैं ना, मान लेंगे यार, आप, मुझे दो लिख दें, आप मुझे वो लिख दो दें। बंदे मुझे और सारा पता तो चले ना कि मजबूत दो बंदे क्या क्या कमाल वाली बात कर रहे हैं आप? तो बताएं ना सर, उसमें आपने से। मुझे टेक्स्ट से दिखाना है, फिर वही क्या? बात। कभी आप मुझे वो जनाब कुरान की तरफ ले जाते हैं, कभी उधर ले जाते हैं, कभी अच्छा, उधर मुझे ले ये जाते बताएं हैं कि अगर आप सवाल रिपीट कर रहे हैं तो मुझे बताएं सर, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। मुझे ये मेरी बात बताएं सुनो। जो आयत बकरी खा गई थी, उस बकरी को क्या सजा खा गई दी? बकरी? उसको सजा क्या दी? बकरी खा गई? उसको सजा क्या दी? सर बकरी खा गई ना, आयतें खा गई। सर बकरी खा गई ना, तो भाई उसको छोड़ दिया। छोड़ दिया ना हमने, खा गई ना बकरी। नहीं, उसको सजा उसकी क्या? जरूरत नहीं थी ना हमें, नहीं। उसकी जरूरत ही नहीं थी हमें, वो मनसूख अच्छा, थी। हमें भी इसकी जरूरत नहीं थी। इसकी जरूरत नहीं है। किसकी? जो यूहन्ना की वो निकाली, क्या? इसलिए निकाल दी क्या? यूहन्ना की जो वो ये चीज़ नहीं है, निकाली, क्या हो गया आपको? देखें, ये आज ये- भी मौजूद है। इसका जब तक आप मुझे ऑथेंटिक को रेफरेंस क्या ना दें, ऑथेंटिक? मैं नहीं मानता। ये आपने देना है सर। मेरा तो क्वेश्चन है आपसे कि ये ठीक है ही तो मतलब मुझे आप बकरी का बता दें कि उसको क्या सजा बकरी क्या का? दी, तो हम इस पे भी गौर कर लेंगे। सर पहली तो बात ये है, वो जो है ना रवायत सही नहीं। एक दूसरी बात ये बात भी ये- रवायत सही सर नहीं है सुन जो आप लेना, बता रहे हैं। सुन लेना, मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने। आपके वहाँ जो है दुश्मन कुरान बाइबल जला रहे हैं, दुश्मन जो है इसके। दुश्मन ठीक, तो सुने ना, सुने ना सर, सुने ना। कोई बाइबल का हाफज नहीं दुनिया में, आज भी नहीं है, कोई ने मालूम नहीं है, और बार बार जला रहे हैं। यसु मसीह से पहले भी 3 बार, यसु मसीह के बाद भी वो जला रहे हैं, दुश्मन जला रहे हैं, दुश्मन उसे जला सफा हस्ती से मिटा रहे हैं। हाँ? कहाँ से लिख ली, किसने बना ली? क्या चीज़? वहाँ नबी के शगिर्द और वो चीज़ें जला रहे हैं कि जो दुरुस्त नहीं है, जो कुरान नहीं है, कुरान के नाम से मशहूर की जा रही है, उसको जला रहे हैं नबी के शगिर्द। और यहाँ जला रहे हैं बाइबल, दुश्मन जला रहे हैं, और रखने पे पाबंदी लगा रहे हैं। सुनो जी, दुश्मन तो 100 दफा जलाए, दुश्मन की नीयत को आप कंट्रोल कर सकते हैं जी प्लीज। फिर कैसे मेरे बना साथ ली, हाथ मिला बनाई के। कैसे? पूरी दुनिया से जला दी बनाई थी। कैसे? पूरी दुनिया से जला ओ दी थी। भाई, पूरी दुनिया कौन सी हाँ थी? यार, पूरी वॉल्टेयर पूरी दुनिया में था। में है कहाँ थी मसीहत? वॉल्टेयर पूरी दुनिया ओ में सर, था। पूरी दुनिया में है कहाँ थी मसीहत? अभी नहीं है। कब? मैं उस ओ वक्त भाई, की पहली बात, 3 वो सदियों जब में जलाई मसीहत थी, मैं पहुंच उसकी चुकी बात कर। पहली 3 सदियों में, पहली 3 सदियों में मसीहत हर जगह पहुंच सर चुकी थी। पहली 3 तादाद सदियों से इतनी पहले नहीं जलाई होगी। गई है। यसु मसीह के 30 साल बाद जलाई गई ठीक है, है, तो 70 साल बाद जलाई गई है। सुने तो सारी तो नहीं जला दी थी। क्या सारी है? कौन सी थी? कौन सी थी? वो तो है ही नहीं। मसीह की अंजील तो मौजूद ही नहीं है। क्या जो चीज़? मसीह ने कहा था जाए जाके, मसीह की अंजील जब जो आप मसीह सुने, ने ये कहा जो था, मसीह की अंजील- जब मसीह ने ये फरमाया था कि जाओ खलक के सामने अंजील की मनादी करो, कितने उस वक्त अंजील है, उस वक्त मत्ती है थी, लूका है थी, मरकस है थी,
या न है थी, अमाल है थी, उस वक्त है थी? बता दें ज़रा। ज़बानी सुना था ना उन्हें? क्या ज़बानी याद क्या था उनको। ज़बानी ये सुना था ये मत्ती की इंजील है? पहले कायम हो गया था, आपको पता नहीं हिस्ट्री का। मुझे नहीं पता। अच्छा खैर चल हकीम साहब क्रॉस 2 पे उन्होंने जी 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 सुन तो नेक्स्ट जी नेक्स्ट कौन सा? सवाल नंबर 16। हज़रत मसीह फरमाते हैं कि ये ना समझो कि मैं तुरैत या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ जब तक आसमान और ज़मीन टल ना जाएं, एक नुक्ता या एक शोशा तुरात से हरगज़ ना टलेगा। हाँ ठीक है, ठीक है। यानी तुरात से एक नुक्ता और एक शोशा, यानी जो को इसका क्या मतलब है? मुझे पहले तो मौजूद है चीज़ें। क्या तो रेत अपनी जगह मौजूद है भाई, उसके अहकाम पे अमल करना होगा ना। अब आप फर्क बात कर रहे हैं। जो आप देखिए, अच्छा ये नहीं। सवाल पूरा हो लेने सवाल कर लिया उन्होंने। नहीं कर कहाँ लिया यार? चलें, क्या? तो फिर क्यों मुझे छोड़ मुखातब दें। करते हैं? सुन लें, हज़रत मसीह फरमा रहे हैं कि जो कोई आगे सुन ले, वो कह रहे हैं ना अमल नहीं, आगे वो लिखते हैं बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से किसी को तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। मतलब ये है कि जो तुरात ने हुक्म दिया उस पर अमल करना है, नहीं करोगे तो हुक्म तोड़ दिया। यही बात है ना, सुन ले। अच्छा, और जो इसके खिलाफ सिखाएगा वो खुदा की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। यही बात। सवाल होने दें, मेरा सवाल होने दें, 1 मिनट। अच्छा, सवाल अब ये है कि हज़रत मसीह ये फरमा रहे हैं कि तुरात से कोई हुक्म नहीं टलेगा, जिस तरह तुरात में है वैसे का वैसे ही होगा। ठीक है जी। और आसमान, ज़मीन और आसमान टल सकते हैं, तुरात के जो हुक्म मौजूद हैं वो नहीं टलेंगे। यार सवाल तो पूछ लें। क्या हो गया? पूछने दें, खुतबा तो ना दें, पूछने दें। क्या हो गया? इसके बाद मसीह इस हुक्म का खिलाफ खुद कर रहे हैं। क्या और तुरात नहीं, क्या क्या सुन ले, मिसाल सुन ले, मिसाल के तौर पे ऐदनामा यार सवाल मुकम्मल सवाल अभी कर रहे हैं जी, सवाल कर रहे हैं मुकम्मल तो नहीं। ये तमहीद थी। मैं दसन लगा कि ਉਹਦਾ खिलाफ मसीह ने किया है, मिसालां ਉਹਦੀਆਂ देन लगा। सुन लो, वो कहते हैं जी पहले लिखा था तलाक देने का, मगर मैं तुमसे कहता हूँ हरगिज़ तलाक ना देना। खुद कह रहे हैं कि क़यामत तक कोई उसका हुक्म नहीं टलेगा, खुद उसका हुक्म टाल रहे हैं। एक बात। दूसरी बात सुन ली, खुद फरमाते हैं कि लिखा था कि ज़ना ना करना, ये तुरात का हुक्म है ना, अब इस हुक्म को टाल रहे हैं। कैसे? कि मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुमने बुरी निगाह से देख लिया तो तू ज़ना कर चुका। चलो बस हो गया ना। हाँ जी, हो गया। मुतअद्दिद मिसालें जी। अब आखिर वाली बात को हम पहले बयान करते हैं कि जो मसीह ने कहा कि तुम सुन चुके हो कि ज़ना ना करना, मगर मैं तुमसे कहता हूँ कि किसी को बुरी नज़र से भी ना देखना। तो इसमें कंट्राडिक्शन नहीं है कि वो कह रहे हैं कि अब ज़ना की इजाज़त है, आपको समझ नहीं आई। वो कह रहे हैं कि किसी को बुरी नज़र से भी ना देखना। ज़ना करने के लिए ज़रूरी है कि वो शख्स पहले बुरी नज़र डालता है, फिर प्लान करता है, फिर उसके साथ रिलेट करता है। तो मसीह ने तो कहा कि उसको निप द ईवल इन द बड, कि जब दिमाग में शुरू होता है वहीं पे रोक दो उसको। तो मुखालफत कहाँ की उसकी मुखालफत कहाँ की? ये आपकी अंडरस्टैंडिंग गलत है। दूसरी क्या बताया कि मसीह ने कहा कि मैं तो रेत को मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया। तो पूरा करने का मतलब समझे, कुर्बानियों का जो सैक्रिफिशियल सिस्टम था बहुत लंबा चौड़ा सिस्टम था, हैकल थी, काहिन था, अल्टार थी। तो नहीं ये मेरी ज़रूरत अच्छा कोई तो वो कुर्बानी जो थी वो साल साल देने वाली कुर्बानी थी। मसीह ने एक मुस्तकिल कुर्बानी दे दी। जब मुस्तकिल कुर्बानी दे दी है तो सैक्रिफिशियल सिस्टम की, उन सेरेमोनियल लाज की अब ज़रूरत नहीं है। तो पूरा का उसको फुलफिल कर दिया। हैकल का पर्दा 2 टुकड़े हो गया, हैकल भी वहाँ से हटा दी गई, उसको चर्च ने रिप्लेस कर दिया। अब इनकी ज़रूरत नहीं है, उसको मुकम्मल कर दिया। तो आप मसीह की बात को समझिए। सही हो गया जी। क्रॉस मैं 1 मिनट, ये जनाब 3 लफ्ज़ क्या पढ़ दें। ये तो रायत का हुक्म है। मेरी अच्छा थोड़ी हाँ तो क्या पढ़ देना ज़रा। तलाकनामा लिख दे। किसको? ज़ाहिर है उसको, औरत को दे। और ये हुक्म क़यामत तक नहीं टलेगा। जो इसको छोटे से छोटे हुक्म को मनसूख करेगा या इसके खिलाफ तलीम देगा
वो खुदा की बादशाही में सब। आप सर फिर मेरा भी- सवाल करने दे हो मुझे। गया ना, आप नहीं कह रहे हो गया, मसीह ने contradict नहीं हो किया गया ना, यही सवाल कंट्राडिक्ट, है। मेरा सवाल ही नहीं है। क्या कर रहे हैं आप? मेरी बात सुन सवाल लें, क्या मेरी आपका? बात सुन लें। मसीह फरमा रहे हैं तुरैत का कोई हुक्म मनसूख नहीं होगा। जो कोई इसको मनसूख कहेगा करेगा, इसके तलीम देगा, वो खुदा की बादशाही में सबसे छोटा होगा। सवाल क्या और है? फिर खुद तलीम दे रहे हैं कि जो तलाक नहीं देनी, ये इसके खिलाफ है या नहीं है? ये contradict- ठीक सुन है, लेना इसका आप। जवाब नहीं आप जी। सुन ले, आप मसीह ने कंट्राडिक्ट नहीं किया। मसीह ने कहा कि ज़िना करी के केस में तलाक हो सकती है, तो यही बात है ओल्ड टेस्टामेंट में भी हो सकती थी। उसने भी कहा अगर कोई ज़िना करी है तो हो सकती है। ओल्ड टेस्टामेंट में आया कि तलाक नहीं देनी? अच्छा एक क्या? भाई तलाक साहब, नहीं आपका- देनी? आपका सवाल- नहीं, आपका लिखा है क्लास वन तलाक का देनी जवाब है। पूरा हुआ। तो सर यही तो मैं कह रहा हूँ। तो मसीह ने कंट्राडिक्ट सर नहीं मैं किया। यही कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ, हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि ओल्ड टेस्टामेंट में हुक्म मौजूद है तलाक देने का, मौजूद है ना? तो बिला वजह देनी है। बिला वजह तो कहीं भी नहीं होती। बिला वजह होती कहाँ होती है? नहीं होती। बिला वजह कहाँ भाई, होती है? बिला वो वजह। नहीं जी, ये बिला जो वजह- तलाक तो ये बिला वजह होती है, ये बिला वजह नहीं होती है, ये कोई बिला वजह तो नहीं होती। मसीह ने कंट्राडिक्ट और नहीं किया। सर मसीह ने भी कहा सर कि आप अगर आप ज़िना जवाब करे- नहीं देना चाह रहे मेरी बात का। जवाब मतलब आपकी मर्जी के क्या मुताबिक क्या देनी है। मर्जी के मुताबिक? मतलब मैं कह दूं क्या कंट्राडिक्ट है? मसीह ने कह दिया कि यहाँ तलाक नहीं है, वहाँ पे थी। सर मेरा इधर भी है। मेरा आपको सवाल नहीं ये पता। है, मेरी बात। लेकिन बिला वजह नहीं है कि हर वजह से सर तलाक मेरा होती है। सवाल ये पादरी साहब- है, किसी ने मिर्च ज्यादा हकीम डाल साहब- दी तो हकीम तलाक। साहब, जी। पादरी साहब आपका क्रॉस वन का जवाब पूरा चलो, हुआ। आगे। ठीक है, आप अच्छा, क्रॉस सुन करना लें। चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगला सवाल करें। चले जी, सवाल नंबर 17। जी जनाब मसीह ने फरमाया है कि ये न नहीं, समझो इसमें अभी आपका सेकंड क्रॉस सर ये और सवाल है सर, सुन लें आप। क्या हो गया इस पे 20 सवाल बन जाते हैं, इसी पे चलो इसी पे 20 सवाल बन जाते ठीक है, हैं। ठीक। आप कमाल है, सवाल सुने आप। क्या हो गया आपको? चलो, मैं तो आप आपको नहीं मौका जवाब दे रहा देना हूं। चाहते हैं तो ओ, खत्म कर मैं दें। तो कह रहा हूँ पिछले का भी रहता है एक। जनाब मैं नहीं- मसीह फरमाते हैं कि ये ना समझो कि मैं तुरैत या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ जब तक आसमान और ज़मीन टल ना जाएं एक नुक्ता या एक शोशा तुरैत से हरगिज़ नहीं टलेगा। ठीक है। जब तक सब कुछ पूरा ना हो। ये तय हो गया कि जब तक ज़मीन और आसमान टल नहीं ना जाते तुरैत का कोई हुक्म नहीं टलना। ठीक है हाँ, जी? जब तक पूरा ना हो बस सब कुछ। जो कोई ज़मीन और आसमान टल ना जाए, बस जो कोई उन छोटे से छोटे हुक्मों में से किसी को तोड़ेगा और यही आदमी को सिखाएगा वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। मत्ती 5:18-19। इसके बाद जनाब पाल ने मसीह की सारी तरीक को बदल दिया, खतरे को ख़त्म कर दिया, कुर्बानियों को ख़त्म कर दिया, शरीयत को लानत का नाम देकर शरीयत को ख़त्म कर दिया। तो जनाब नहीं, मेरी बात मसीह सुनिए। के फिर वही बात है हकीम साहब, मैं आपकी रिक्वेस्ट करता हूँ खुतबा नहीं देना। इनमें से एक सवाल सेलेक्ट कर दे कि ये एक सवाल नहीं, ये सवाल नहीं, 10 सवाल बीच में आपने डाल कौन से दिए। 10 दिखाए जरा, कौन से 10? अभी अभी आपने क्या क्या बोला? मैंने ये बोला है कि मसीह की तालीम ये है कि ज़मीन और आसमान की अच्छा हकीम साहब, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। आपने रेफरेंस दे दिए, जनाब पाल ने रेफरेंस दे दिए। सारी शरीयत अब खत्म 30 कर सेकंड दी। में आप भाई साहब को अपना ठीक सवाल- है, ये बात इसको एड्रेस करूँ कि पाल शरीयत के खिलाफ गया, उसने खतरा खत्म कर दिया, ये सवाल। मेरा सवाल ये है कि मसीह ने ये फरमाया है ज़मीन और आसमान के टलने तक रात के काम। ठीक है, और बोलो उसने ये शरीयत खत्म। ठीक है। फिर जनाब शरीयत खत्म कर दी सारी की सारी। चलिए जी पहली बात है कि ये आपको पता नहीं कि गुजरा वाले में कौन से क्रिश्चन है जो आपको सिखाते हैं कि शरीयत सारी हम शरीयत के पाबंद है। एथिकल लॉस का मतलब एथिकल लॉस चोरी ना करना, गुनाह ना करना, झूठ ना बोलना। क्या ये लॉस खत्म हो गया? आप क्रिश्चियंस कहते हैं हमें ये कहा गया कि आप चोरी कर सकते हो, आप ज़िना कर सकते हो, आप झूठी गवाही दे सकते हो, आप पड़ोसी की चीज़ का लालच कर सकते हो। और भाई एथिकल लॉस कभी खत्म नहीं होते, सेरेमोनियल लॉस खत्म हुए उसको भी सुनो, वो फुलफिल। मतलब कुर्बानी का हुक्म था, दायमी कुर्बानी होगी, अब बार बार कुर्बानी नहीं करनी, ये ख़त्म नहीं हुआ, उसको कंप्लीट किया, उसको मुकम्मल किया। खतने की बात चीज़ है, मैं 3 सवालों का जवाब दे रहा हूँ। खतना जो है ना, आप उसके एग्जाम हो गए हैं, ये कुर्बानी का इख्तिताम उसी यीशु की कुर्बानी जो है कि अब तो कुर्बानी होगी, काम कुर्बानी होगी, अब कुर्बानी की जरूरत नहीं है। बनी इसराइल में अब उस अहद की बात नहीं थी। जी मैं बात मैंने कितनी बता चाहा कि जिस तरह
मुर्गी अपने बच्चों को पकड़ ले छुपा लेती है, मैं भी छुपा लूँ, लेकिन तुमने तो नहीं चाहा। योना ने कहा कि अब तो दरख्तों की जड़ों पर कोई मारा रखा है, बाकी कहता है कि तुम अपने बाप दादा के या हमसे आएंगे, उनसे पाकिस्तान लेके दूसरी कौम को दे दिया। जब पाकिस्तान दूसरी कौम को दिया तो एक नया अहद मांगा गया, वो अहद मसीह ने खून से बना है और इसका निशान, इसमें शमूलियत का निशान वक्त से है, क्योंकि पुराना अहद बनी इसराइल के साथ था, उन्होंने इसकी बात नहीं की। ये क्रिश्चियंस के साथ, शाही बहनों के फिरके के साथ ये अहद किया गया है, इसलिए करने की जरूरत है और उसका इसमें कुछ लेना देना। हकीम साहब जी आप क्रॉस करें। जी, पादरी साहब ने कहा है, जो बात ये है कि सारी शरीयत मंसूख नहीं है, कुछ शरीयत मंसूख। तो मेरा सवाल है, आपको समझे, ये भी आपके अपने अल्फाज हैं। मैंने कहा कि वो शरीयत मुकम्मल कर दी गई, उसमें अमल कर दिया गया, उसका क्लाइमैक्स यही था। आप मेरा ख्याल है एक बार फिर वादे कर दें। मैंने कर दिया, आपको नहीं करना। आज आपने शरीयत पे अमल करना है या नहीं करना? क्या चीज़? आज शरीयत हम पे अमल करते हैं ऑलरेडी। किस पे? वो भाई शरीयत पे अमल करते हैं, ये निजात भी शरीयत की वजह से, आपको पता सारी शरीयत पे अमल मुझे नहीं पता सारी पे क्यों करनी, जिस पे अमल हो गया एक बार फिर कह दे, मुझे नहीं पता। क्या चीज़? मुझे नहीं पता। ये तो मैंने नहीं कहा, मुझे नहीं पता, मैं तो आपको बता रहा हूँ। कौन सी शरीयत पे आप अमल करते हैं? एथिकल लॉज पे हमेशा अमल कितने हैं? सुने एथिकल लॉज पे मैंने आपको तो सर यही मैं कह रहा हूँ, मसीह कह रहे हैं छोटे से छोटा हुक्म जो मनसूख समझेगा वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। ये तो मैं कह रहा हूँ, मैं आप खुद तस्लीम कर रहे हैं कि भाई हम एथिकल लॉ मानते हैं, बाकी हम लॉ नहीं मान रहे। ये कह रहे हैं ना, सुन लेना यार, मैं ये नहीं कह रहा। जी सुना, आप मेरी बात नहीं समझे, ये मैं शरीयत पे कर चुका हूँ। एथिकल लॉज कभी भी नहीं करते, जो सेरेमोनियल लॉज है उनकी तकमील हो चुकी, जब तकमील हो चुकी तो उनको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। सर एथिकल लॉज की मुझे सुने सबक इसमें शामिल है नहीं क्या? सबक उसमें शामिल है नहीं? हकीम साहब क्रॉस मत करें। सबक से हम करनी, ये आपकी सबक अमल करते हैं, अमल करते हैं। सबक के दिन सबक कौन सा इबादत करनी चाहिए। सबक कौन सा दिन है? सारे सबक ठीक, इबादत करनी है। रात का ये हुक्म है सारे दिन सबक है। हाँ, अगर मैं बता दूं कि 7वें दिन के बाद 8वां दिन भी सबक है तो सर वाला दिन सर ये नहीं, अगर निकल आए वो खुदा ने सबक मुकर्रर किया वो कौन सा है? तो आयत में खुदा ने हाँ, सबक वो का दिन सही कौन सा? ठीक है, ठीक है, लेकिन हमारे लिए जो है ना, हाँ वो सच है। हमारे लिए जो है ना, सर आपके लिए मैंने नहीं पूछा, सर मैंने आपके लिए नहीं पूछा। ओ भाई, क्रिश्चियन सर का सर है। सर मैं ये बाइबल से पूछा कि बाइबल में सबक का हुक्म किस दिन का है? अब आपने सवाल बदल दिया। वैसे ठीक, आपका सवाल ओरिजिनल ये मेरा वही सवाल है। मैंने हकीम साहब आपने क्रॉस मेरा सवाल का जवाब तो आप दे नहीं रहे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि शरीयत के कितने हुक्म हैं, उनके ऊपर आप अमल करते हैं, कितने अब आप ना, ये देखें गिनती तो ना करेंगे वैसे क्या आधी शरीयत पे अमल करते हैं? क्या? आधी पे अमल करते हैं, आधी पूरी शरीयत पे अमल करते हैं। कैसे? लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है। कुर्बानी वाला चूंकि हो चुका, हम उस पर अमल करते हैं, मसीह की कुर्बानी पे मानते हैं, ये उस पर अमल है। आपको समझ नहीं आ रहा मसीह ने कहा है क्या? कि अब कुर्बानी नहीं करनी। जब है तो पर्दा काट के दो। सर मसीह ने ये कहा है, मसीह ने कुर्बानी दे दी। सर मसीह ने कहा है कुर्बानी खत्म हो क्या गई। चीज़? कुर्बानी खत्म हो गया। लेकिन मसीह ने जब उसका क्लाइमैक्स कर दिया, कुर्बानी सर दे ये दी। आपकी जाती अच्छा हकीम साहब ये आपकी क्रॉस मेरा कोई जवाब नहीं इसका। क्रॉस देखें। में छठे पे आप जा रहे हैं, चलें, ठीक है? ठीक तो इसको हम अपने नाज़रीन के जी, लिए सवाल ठीक। को जोड़ते हैं। हाँ जी, सवाल नंबर 18। ठीक है। जी हकीम साहब। सर मेरा सवाल आपसे ये है, सवाल से पहले तो 18 जी 18 बादशाह बड़ा होता है कि चपरासी बड़ा होता है? हकीम साहब आप सवाल करें, सवाल ये ना आप समझा। करेंगे ना हर तो फिर सुन इस तरह से मैं वही कर रहा हूँ। नहीं प्लीज। 18वां सवाल होता है। खातम नहीं कर रहा नहीं, फिर आपने पूछा तो ये 18 जी 18 अच्छा, जी नहीं, नहीं, जवाब दे। बादशाह बड़ा होता है, मेहरबानी आप खामोश हैं। बादशाह बड़ा होता है, चपरासी बड़ा होता है। हकीम साहब बादशाह बड़ा होता है, चपरासी। मैंने आपको 18वां सवाल है। ये अंडरस्टैंडिंग जो है ना, ये अच्छा। अंडरस्टैंडिंग जो है, फिर ये अंडरस्टैंडिंग मुनाज़रीन के लेवल की नहीं है। आप इसको ऐसे नहीं, अच्छा। आप टू दी पॉइंट अपना सवाल दें। अच्छा भाई, कर रहा हूँ, मैं
मेरा नहीं ख्याल कि हमारे सुनने वाले इस बात को सुन आप सवाल दें, टू द पॉइंट सवाल दें। यसू मसीह बादशाह आप हैं, सवाल दें। यसू मसीह बादशाह हैं, पौलुस की हैसियत उनके मुकाबले में चपरासी मसीह के मुकाबले में मसीह बादशाह। हजरत मसीह ने कहीं नहीं फरमाया कि शरीयत पे अमल नहीं करना। अगर मसीह ने फरमाया है कि शरीयत पे अमल नहीं करना तो मुझे बता। सर मसीह इब्ने मरियम फरमाते हैं कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता। तो यही मैंने बात की थी कि भाई बादशाह बादशाह होता है, चपरासी चपरासी होता है। तो जनाब मसीह की हैसियत मालिक की है, पौलुस की हैसियत नौकर की है, ठीक है ना जी। हज़रत मसीह ने कहीं नहीं कहा कि शरीयत ख़त्म हो चुकी है, शरीयत पे अब अमल नहीं करना जी, कुर्बानी ख़त्म हो चुकी है जी, खतना ख़त्म हो चुका है जी, सिर्फ एथिकल लॉ बाकी है, बाकी पे आप पे अमल नहीं करना। बल्कि मसीह तो ये फरमा रहे हैं कि छोटे से छोटे हुक्म को भी जो मनसूख समझेगा वो खुदा की बादशाही में छोटा कहलाएगा। तो जनाब पाल बड़े से बड़े अहकाम को ख़त्म कर रहे हैं, तो ये एक नौकर मालिक की बात को कैसे ख़त्म कर सकता है? मसलन कौन सा हुक्म? जी मसलन कुर्बानी का हुक्म तौरात के बड़े अहकाम में से है, उसको ख़त्म कर दिया। खतना का हुक्म बड़े अहकाम में से है, उसको ख़त्म कर दिया। मसलन सबत बड़ा हुक्म है, उसको ख़त्म कर दिया। जी देखिए सबत का मैंने बताया कि मसीह चूँकि संडे वाले दिन मुर्दों में से जी उठे, इब्तदाई कलीसिया ने संडे को वर्शिप करना शुरू कर दिया, इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोतबर है। हम उसी को सबत मानते हैं, उसी में खुदा की वर्शिप करते हैं उस दिन को मनाते हैं। और कई मुल्कों में कई जगह पे क्रिश्चियन इदारों में सैटरडे संडे 2 दिन ही मनाते हैं। अब आ जाएँ कि खतने की बात। खतने की बात मैंने आपको बताया कि अहद 2 तरफ़ा होता है। चूँकि बनी इसराइल ने अपने अहद की अपनी साइड की पासदारी नहीं की, इसलिए खुदा ने उनसे पाकिस्तान लेके एक दूसरी कौम को दे दिया और उनके साथ एक नया अहद बंधा, और उस अहद का निशान खतरा नहीं बल्कि बपतिस्मा है। तो ये एक जामे अहद जो बांध दिया। तीसरी बात आपने क्या पूछा? कुर्बानी। हाँ, कुर्बानी वाली बात। कुर्बानी देखें आप समझना नहीं चाहते, वो जो कुर्बानी ओल्ड टेस्टामेंट में होती थी वो साल हर साल होती थी। आपने गुनाह की कुर्बानी के दौरान दी, आपको माफ़ी मिलती, अगले साल आपने गलती की, नेक्स्ट कुर्बानी फिर आपने देनी है, तीसरे साल फिर आपने कुर्बानी देनी है। और साल में एक दफ़ा सरदार काहन पूरी कौम के लिए यौम किप्पूर के दिन कफ़ारा देता है। मसीह ने जो कफ़ारा दे दिया, शमौन ने जब मसीह यीशु को बचपन में देखा तो उसने कहा कि खुदावंद अपने बंदा को सलामती से रुखसत कर, क्योंकि मैं तेरी निजात देखती हूँ। उसने कामल निजात का कामल कुर्बानी देकर काम कर दिया। और उस वक्त के सरदार काहन ने रूह उसकी तहरीक से रूह से ममूर होकर ये बयान दिया था कि तुम नहीं जानते कि बजाय इसके कि पूरी कौम हलाक हो, एक शख्स उनके लिए कुर्बानी दे। उस शख्स ने कुर्बानी दे दी। मसीह यीशु के अल्फाज है कि तुमने मेरे लिए बदन तैयार किया, मैंने उसके लिए कुर्बानी दी है। तो इसलिए मसीह यीशु की कामल कुर्बानी आ गई है। अब उसके बाद किसी बकरे छतरे की इनकी कुर्बानियों की ज़रूरत नहीं है। जब कामल ये ताक़यामत ये कुर्बानी कारगर है, आपने सिर्फ उस पर ईमान लेना। मैंने तीनों सवाल बताए। सर आपने मेरे सवाल को आप समझे ही नहीं, जवाब क्या खाक दिया आपने। सुन लें, मैं एक मिसाल से समझा मेरी ऐसे अल्फाज ना इस्तेमाल। मैं कहूँ आपने खास सवाल पूछा, आप मैं पंजाबी में कहता सवाल फिर पूछा। आप ये ना कहें मैंने आपके तीनों सवालों का जवाब इस सवाल दिया, जो जो मिसालें 3 हैं तो तीनों मसालों मिसाल को आपने खुद मांगी। तीनों मसालों अच्छा, को सुनें, मसाले लगा दिए ना। सुन लें। अच्छा सर, मैं आपको मिसाल से बात समझाता हूँ। मेरी डिबेट क्या होती है पादरी शरीफ कमल साहब के साथ, जो CDA के चेयरमैन। ओके, मैं कराची में आता हूँ और मुझे क्यूम बहादुर साहब कहते हैं जी आपकी डिबेट नहीं होनी, आप चले जाए। मैं कहता हूँ जनाब CDA के चेयरमैन साहब की मेरे साथ डिबेट तय है, मुझे चेयरमैन साहब का हुक्म दिखा दें। मैं आपकी बात नहीं मानता, आप CDA के चेयरमैन नहीं यार हकीम साहब, मैंने आपको नहीं ऐसा कहना, मेरी बात सुनिए। मैंने आपको नहीं, और मैं उनको मिसाल दे रहा हूं यार, आपका नाम निकाल देते हैं, आपका नाम निकाल देते हैं। अच्छा, कोई मुझे आपका ड्राइवर कहता है, मुझे आपका ड्राइवर कहता है जी पादरी साहब के साथ डिबेट नहीं होनी। मैं कहता हूँ भाई तू नौकर है, मैं तेरी बात नहीं मानता, मुझे ये बात मालिक कहे। सर मेरा यही सवाल है कि आप मुझे कह रहे हैं जी जनाब पाल ने ये कर दिया, उसने ये कर,
मुझे तो उसकी तो मुझे मसीह से दिखाएं, चलिए, मसीह ने कहा हो सवा कि मिनट का आज के बाद खतना नहीं है, आज के बाद कुर्बानी नहीं है, आज के बाद ये नहीं हकीम है। साहब हो गया सवाल जी आपका जो सवाल है ना, मैं कहूँ कि सूरह फातिहा के अंदर है जो मौज़तैन के अंदर मसाइल हैं वो क्यों नहीं है। मैं कहूँ कि सूरह बकरा के अंदर है, आपने वो वाक़या मिराज का जिक्र क्यों नहीं किया, ये आप कह रहे हैं वो कहा नहीं, वो नहीं, बस वो नहीं। अब अच्छा, मुझे जवाब मेरा टाइम है ना, सेकंड मुझे बोलने सेकंड दें। क्रॉस का जवाब ले लें। वही है बिल्कुल। बात यह है कि हम कहते हैं कि ये 40 मुख्तलिफ अंबिया कराम ने रूह कुद्स की तहरीक से बाइबल को लिखा है। हम ये इम्तियाज़ नहीं करते कि ये पौलूस ने कहा है और ये इब्रानियों का खत है। भाई अगर इब्रानियों का खत पौलूस का लिखा हुआ नहीं है, उसमें लिखा कि बकरों और छतरों की अब कुर्बानी की जरूरत नहीं है, हमारे लिए एक दायमी कुर्बानी हो चुकी है। आप क्रॉस 2 करेंगे या ये next पौलूस अगले का सवाल नहीं है। नहीं, मेरे सवाल का जवाब ही नहीं। बात चल अगली बात करते हैं। अगले सवाल पे जी अगले सवाल पे जी सवाल नंबर 19 मत्ती 2:23-26। बत्ती मत्ती का 2 बाब है, 23-26 आप पढ़ें। आमर आवाज़ ठीक आ रही है? न्यू टेस्टामेंट में गलतियां पाई जाती हैं। पहले भी मैं मिसाल दे चुका हूँ, एक मिसाल और देता हूँ। ये मत्ती 2:23-26, जब मसीह के साथियों पर सबत के दिन खेत से बालें तोड़कर खाई उन्होंने, तो मुखालिफिन ने उन पर सबत के एहतराम न करने का इल्ज़ाम लगाया। उसके जवाब में हज़रत मसीह फरमाते हैं कि मसीह ने ये दलील दी कि भूख लगने पर दाऊद ने भी अबियातर सरदार काहन के दिनों में खुदा के घर से नज़र की रोटियां खाई थी, जिनका खाना कानों के सिवा किसी को रवा नहीं है। हज़रत मसीह इब्ने मरियम मेरे अकीदे के मुताबिक नबी हैं। नबी इल्हाम से बोलता है, वो गलती नहीं करता। आपके अकीदे के मुताबिक मसीह खुदा है, तो खुदा को तो बिल्कुल गलती नहीं करनी चाहिए। तो ये दाऊद के ज़माने में अबियातर सरदार काहन के दिनों में खुदा के घर से नज़र की रोटियां खाना, ये तो गलत बात है, ऐसा तो नहीं है तो आप हवाला दीजिए। जबकि ओल्ड टेस्टामेंट में 1 सैमुअल 21:2-4 में लिखा हुआ है कि ये अबियातर सरदार काहन के दिनों का नहीं, बल्कि अखी मलक सरदार काहन के दिनों का वाक़या है। ओल्ड टेस्टामेंट बयान कर रहा है अखी मलक का वाक़या है। न्यू टेस्टामेंट से मसीह से मंसूब किया गया है कि ये अबियातर सरदार काहन का वाक़या है। तो सर ये तो सही गलती है ना, तो एक गलत खुदा के कलाम में गलती। मेरी बात सुनो, खुदा के कलाम में गलती नहीं हो सकती। अच्छा सवाल अव्वल तो मुझे नहीं पता कि वाकई ऐसा है। आप पढ़ तो यार सुन लेना, आपने सवाल कर लिया, मुझे जवाब देने दे। जी ये फिर मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन कर लूँ कि लिखा है सूरह बनी इसराइल में कि अल्लाह ताला अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया। तो मस्जिद अक्सा तो हुजूर के ज़माने में मौजूद नहीं थी। क्यों? तो वो तो सलमान के ज़माने से बनी है। वो मस्जिद अक्सा थी। क्यों, क्या थी? मस्जिद अक्सा क्या थी? थी? कहीं मुझे लिखा हुआ क्या दिखा थी? दें कि उसको मस्जिद अक्सा कहीं लिखा दिखा दे मस्जिद अक्सा नहीं थी। तो नहीं थी ना भाई क्यों मस्जिद नहीं अक्सा, थी? उससे आप पहले मुझे लफ्ज़ उसका नहीं नाम बता इस्तेमाल दें, हुआ। उसका नाम बता दें। ओ भाई वो हैकले जो सुलेमानी हैकल थी। हकीम साहब जवाब बनाई आने थी, दें। उसका नाम बता दें। हकीम साहब मस्जिद जवाब अक्सा पूरा सर कहा आप गया उसको। चक्कर दे रहे हैं। अच्छा हकीम साहब हर मस्जिद होती है इबादत का, हर सुने हर अब आप इबादत तवील का कर रहे सुने हैं। सुने सुने अब आप हर तवील मस्जिद कर रहे का हैं। नाम होता है। सर सुने, हर मस्जिद का नाम होता है। हाँ, इसी मस्जिद तरह- अक्सा। इसी तरह हर चर्च का नाम होता है। हाँ, नाम हर होता है। हैकल का नाम होता है। हाँ। मुझे बताएं सलमान की हैकल का हैकल का नाम क्या था? क्या उसको हैकले सुलेमानी नहीं, कहते हैं? सुलेमान हैकल से सलमानी कहते हैं नहीं भाई, है। यही हैकल सलमानी क्यों? सलमान के लिए सजदा करते थे वहाँ। ओ भाई ओ उसने भाई बनाई ना। नहीं, छोड़े, मेरे सवाल का जवाब दें। आपके सवाल का जवाब ये है, अबियातर सुने। काहन याखी मलक, इसका सुने, क्या चक्कर ओ, है? फिर कोई चक्कर ये नहीं है। खुदा को कोई उन्होंने पता नहीं, रोटियां खुदा का खाई। इल्म है कि ये खुदा के कलाम में गलत क्यों लिखा है। ओल्ड ना- टेस्टामेंट खुदा का कलाम है या न्यू टेस्टामेंट खुदा का ओ, कलाम है? मेरी बात सुने। जी ना अबियातर ना सरदार काहन अल्लाह याखी ताला मलक। को पता, ना जब्राइल को सर, पता। ये क्या मैं सर, ये? तीसरा नहीं नाम लेता, मस्जिद अक्सा उस वक्त मौजूद नहीं। ये बात की एंट्री है। जी चलो जी वो रोटियां खाई थी ना, ये जी। वाकया दुरुस्त है। जी ठीक है, रोटियां खाएं। जी सर, वो अबियातर सरदार काहन के दिनों का वाकया है कि मैंने अकी आपको मलक बता ने दिया जवाब कि दे दिया कि- आपने नहीं ना बताया जवाब कि दिया। हैकल- सर नहीं जवाब दिए, जवाब आपने मेरा या जवाब कहें दे दिया। इसका जवाब मेरे पास नहीं, मैंने जवाब दे दिया।
मैंने जवाब दे दिया कि मस्जिद जो है वो सजदा गाह को कहा जाता है। अक्सा दूर की बात चले। है, ये क्या ऐसे बात नहीं है? होता। नहीं, अच्छा, ऐसे एक ही मिनट। ओ भाई ये जो है ना फैसलाबाद ये पहले लाइलपुर था, होता है। तो मस्जिद अक्सा पहले नहीं थी, ये एक मखसूस ये वक्त बात में, ना करें, ये बाद बाइबल में। से भी निकला नहीं है तरीकी गलतियां। वो पहले और बाइबल नाम था, से- बाद में और था। फिर हाँ तो फिर क्राइटेरिया फिर- एक जैसा होना चाहिए। हाँ देखिए ना इनसे अकीदा नहीं बनता। सर, ये कोई बात नहीं। आखी मालक के ज़माने में अगर रोटियां खाई थी उससे हमारा अकीदा गलत हो गया, कौन सा रेफरेंस है? चले। गलत होगी। मती का रेफरेंस दीजिए। मती 2 दो 23-26 23 तक दो में तो ये वाक्य नहीं है। जी 23-26 पढ़े हैं। 2 की 23 26 आयत है नहीं 2 बाप की। यार एक है नहीं, एक मिनट, सॉरी। 2 की 26। हाँ देखो हकीम साहब, एक मिनट जी, विद्वान कर ये कैमरा चल रहा है जी हकीम साहब, जी। कैमरा चल रहा है, आपका एक सवाल रहता है, एक रहता है। हाँ जी चले। क्रॉस आ लेने दें, फिर हकीम साहब को 20 मिनट। हाँ जी एक मिनट, क्रॉस आ लेने दें, फिर अगले सवाल पे चले जाएं। अच्छा, हवाला गलत है जी। हाँ कहने ने कि मती 2 बाब तुसी हवाला अच्छा देता ये है, देखें, मती 2 बात बाब सुनें। 23 तो 26। हाँ हाँ, नहीं भाई मती नहीं, मरकस है, मरकस 23-26। अच्छा जी। आखी अच्छा, मालक ठीक जो है है। ये काहिन है, सरदार काहिन नहीं है। मरकज़- सरदार काहिन वही है, अभी आते भी है सरदार। क्या ये काहिन है, ये सरदार काहिन नहीं है आखी मालक। सर जी, मैंने ये पूछा है उसके कि दौर में ये ये अबियातर के दौर में हुआ कि मलक के दौर में? आखी मलक आखी मालक काहिन था, सरदार काहिन असिस्टेंट वही था। था। क्या ये तो assistant कहाँ लिखा है? था। ये लिखा है क्या देखिए। क्या और दाऊद नूह में आखी मालक काहिन के पास आया, हाँ जी सरदार काहिन के पास है। सरदार काहिन नहीं है। सर, ये वाकया पढ़े ना आप, क्या ये 1 सैमुअल 21-2-4 पढ़े, वहाँ से पढ़े। कौन वहाँ तो लिखा 1 ना, सैमुअल 21-2-4 पढ़े। वो तो आपने ठीक पढ़ा, लेकिन वहाँ पर आखी मालक सरदार काहिन नहीं है। सर नहीं, ये आपकी जाती तशरीह है। जाती भाई, नहीं, देखो, आपको बात बता नहीं है। दिया आपको अच्छा एक यार। मिनट, एक सर, ये मिनट, नहीं। आप हवाला दें, हकीम साहब तसल्ली कर ये लें। ले। क्या यहाँ सरदार काहिन ने लिखा, कहीं ने लिखा, आप निकाल के किससे? क्या क्या सरदार का? आखी मालक है, कौन है? ये सरदार काहिन नहीं है। काहिन और सरदार काहिन एक नहीं है, वो बड़ा होता है। ओ भाई, अच्छा तो आप कर देना, मैं तो नहीं कर रहा। अबियातर सरदार काहन के दिनों का आप दिखा दें कि उसके दिन में ये वाकया पेश आया। उसके ही थे। दे दिखाए आखी मालिक उसके थे। काहिन था। जी, निकाल के दे मुझे। वो 15 बाप की बात। ये वाकया रोटियां तोड़ के खाने का, ये जनाब अबियातर सरदार काहन के दिनों का है। ये मुझे निकाल दें आप ओल्ड टेस्टामेंट से। आपके क्रॉस खत्म हो गया, जी क्रॉस खत्म हो गया। सर, ये वादा मांगा है मैंने। वो देख रहा, हवाला दें। क्रास नहीं खत्म हो गया, ये क्रास क्या है? वादा मांगा है। हवाला भी क्रॉस ही होता है। अब बिजली का बड़ा काम करना है। ये हवाला मिल जाएगा मिल जी? जाएगा, मिल जाएगा। जी अभी देखो। जी आप जब तक नेक्स्ट पूछ लेना वो आ जाएगा। आप नेक्स्ट पूछ लें। नहीं, वो तो आ जाना नहीं। अच्छा चलें जी, जब कभी मिल जाए तो नहीं नहीं, जब कभी नहीं। टाइम क़यामत तक है। अच्छा, अगली बात है जी, नहीं, अगली अब 20वां सवाल। 20वां आखिरी। जी ठीक। सवाल नंबर 20। जी हाँ जी, सवाल नंबर 20 हकीम साहब। जी, सवाल नंबर 20 पादरी साहब कह रहे हैं, ठीक है। नहीं हकीम साहब, मैं भी सवाल नंबर 20 कह रहा हूँ, अच्छा काउंटिंग के मुताबिक सवाल नंबर 20 हो रहा है। जी ठीक। ठीक है। हाँ जी अच्छा जनाब पादरी साहब, जब हम जनाब मत्ती की इंजील पढ़ते हैं
तो जनाब मती जो हैं वो फरमाते हैं, हेरोदेस ने बैतलहम के इलाका के 2 साल की उम्र तक के बच्चे मरवा दिए ताकि इनमें से कुछ बड़ा होकर यहूदियों का बादशाह ना बन सके। मगर ये लिखा हुआ ये अपना लुकमा दे रहे हैं। ये मैं पढ़ रहा हूँ मती 2:13-14, आप खोल लें, आप पढ़ लें। बच्चे मरवा दिए ना 2 साल तक। नहीं यार, आपका सवाल 2 बाब 13-14। मती 2:13-14। इसमें तो ये सर बच्चे मरवाए या नहीं उन्होंने? ये पढ़े वहाँ से क्यों नहीं? 13वीं में तो जब मरवाना हो गए तो देखो खुदाम के एक मिनट मरकस ना हो, एक मिनट नहीं इधर ही होगा। मती में आपको तो पता होना चाहिए। 2 साल का जिक्र नहीं है विच। नहीं है, वो 16वीं है भाई 16वीं है जी। क्या है? लिखा कि जब हेरोदीस ने देखा कि मजूसियों ने मेरे साथ हंसी की तो नहायत गुस्से और आदमी भेजकर बैतलहम और उसकी सरहदों के अंदर के उन सब लड़कों को कत्ल करवा दिया जो 2 वर्ष के या इससे छोटे थे, उस वक्त के हिसाब से जो उसने मजूसियों से तहकीक की। हाँ ठीक है, 2 साल के बच्चे मरवा दिए। हाँ ठीक है, ठीक है जी, यही है। हाँ तो हमें लूका में इससे बरक्स बात हुई। क्या मती कहते हैं कि वो बच्चे 2 साल के मरवा रहा था, इसलिए वो यीशु को लेके मिस्र भाग गए। ठीक है। जनाब लूका जो है, लूका 2:43 में वो कहते हैं कि मसीह को उनकी पैदाइश के 8 दिन बाद वो यरूशलेम में लेके आते हैं। ठीक है। और शमून नामी बुजुर्ग जो है वो उस बच्चे को पहचान लेता है कि ये मसीह होगा, और वो उसके बारे में कुछ जुमले वगैरह कहते हैं, उसको पकड़ के लहराते भी हैं, जो भी है बाहर। तो जनाब लूका कहते हैं कि यरूशलेम में लाए और शमून ने उनको पहचान लिया और लड़का कुव्वत पाता गया, हिकमत से मामूर होता गया। उसके माँ बाप हर साल ईद फसा पर उसे यरूशलेम लेके आते थे। जब जनाब मती कहते हैं कि वो यस्सु को बचाने के लिए वो उसको मिस्र लेके भाग गए, और जब तक वो मर नहीं गया उस वक्त तक वो वापस नहीं आए। लूका कह रहे हैं कि वो तो वहीं थे, शमून ने उनको पहचाना और हर साल वो वहाँ आते भी थे। तो ये जनाब वाज़े एक मती और लूका में वाज़े तज़ाद बयानी है इसका। आप समझ रहे हैं तज़ाद बयान, हम भी समझते कि तज़ाद बयान हो सकता है कि लूका ने उस इवेंट को बयान नहीं किया, लेकिन मत्ती ने उसको बयान कर दिया। किसी इवेंट को, अच्छा ये हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि 8वें दिन ही उसको ले गए, हो सकता है 10वें दिन, महीने बाद उसको ले गए, और जब हेरोदीस की डेथ हुई वापस लेके आ गए। कंट्राडिक्शन ये है कि लूका कहे कि वो मिस्र को लेकर नहीं गए और ये कहे कि मिस्र, ये कंट्राडिक्शन है। लूका ने ये बात कही है, उसने ये बात नहीं कही, ये कंट्राडिक्शन नहीं है, ये आपकी खुद बनाई हुई कंट्राडिक्शन है, इसको हम नहीं कंट्राडिक्शन। चल क्रॉस कंट्राडिक्शन ये है कि लूका उसके खिलाफ को बात करे, खिलाफ जी खिलाफ है, सुन ले सर, खिलाफ है। चले सुन। हकीम साहब, सर क्रॉस वन। ये है, कंट्राडिक्शन ये है कि जनाब मती फरमाते हैं कि हेरोदेस के मरने तक वो मिस्र में रही। जनाब लूका बयान फरमाते हैं कि वो तो हर साल ईद फसा पे तो आप यरूशलेम जाते थे। हेरोदीस को क्या समझते हैं कि वो बहुत लंबी उम्र पा गया था? क्या वो 6 महीने में मर गया था? हमें क्या पता, जल्दी क्या मर गया था। नहीं जल्दी पता? मर आप गया कह था। देना नहीं पता, मैं बता देता हूँ। क्या बताएं, कितनी बता देर देना, आप कह दें, आप कह बताएं दें। कितनी देर। सर आप कह देना। मैं तो कह रहा हूँ कि वो जल्दी मर गया। कब? 6 महीने में मर गया था। अब ये एग्जैक्ट मेरे को कैलेंडर लेके भी यार ना, वो मेरी खाला का बेटा है कि साल मुझे बाद exact मर date गया था। पता है। वो जल्दी मर गया था। 4 साल तक नहीं। मरा था कि नहीं? नहीं 4 साल तक नहीं। हेरोदीस भी 2, एक हेरोदीस सगीर है उस खानदान का, दूसरा सर जिसने बच्चे मरवाए मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ। कब मर गया? 6 महीने में। वही एग्जैक्ट मुझे नहीं सर पता। इतना वाज़े तदाद है, वो कहते हैं क्या? वही कि तदाद। क्या क्या तदाद? तजाद आप मानना नहीं चाह रहे।
वो कह रहे हैं वो लेके मिस्र भाग गए हैं। हाँ गए तो वापस आ गए। वो कह रहे हैं कि वो उसको लेके गए हैं हैकल हाँ, में। जब हेरोदेस की शमून ने death- उनको पहचाना, सुन लें, शमून ने उनको पहचाना, फिर आगे सुने अल्फाज सुने। वो कहते हैं वो उसको लुका के यरूशलेम में वो लेके उसको वापस गया। फिर हर साल वो लड़का कुव्वत पाता गया, हिकमत से ममूर होता गया, और हर साल वो उसको लेके यरूशलेम में आते थे। तो हर साल के पीछे क्यों पड़ गए तो हैं? सर आप अभी वो बता बढ़ता ही देना था वो उधर। हेरोदेस कब मर गया, बता दें आप। अच्छा, मैं बीच में कैलेंडर लेके तो नहीं ना बैठा हुआ? मैं लेके बैठा हूँ। अच्छा, बताओ। मैं कहता हूँ 6 महीने में नहीं मरा। क्या वो- आप बताओ मुझे, कैसे क्या? क्या जुगाड़ है आपके पास, क्या आप बता रहे हैं? बताओ। किसका? हाँ वो जी, आप भी अंदाजा लगा रहे हैं ना? क्या अंदाजा ये आपका? मेरा अंदाजा है? हाँ, और क्या? सर आप सही बता देना, मेरा तो अंदाजा, मुझे तो इल्म मैं नहीं। तो आपको बता रहा हूँ कि हम भी अंदाजा लगा रहे हैं ना कि वो जो लिखा हुआ है कि जब तक हेरोदेस मरा नहीं वो नहीं सर, आया, मर मैं- गया तो मैं वो आ अंदाजा गया। नहीं लगा तो रहा, फिर सुन लें, जब सुन- वो आ गया तो वो साल सुन बसाल लेना, कुव्वत पाता मैं गया। अंदाजा नहीं लगा रहा, सुन ले आपको पता नहीं है। चले हकीम साहब, ये मत्ती क्रॉस की 2 भी आप बात जाने गलत है। लगे। क्रॉस 2 जाने लगे। लूका की भी बात गलत चलो, है। चलो। सुन ले कैसे, सुन ले। हेरोदेस तो यीशु की पैदाइश से 7 साल पहले मर गया था। आप देखें अपनी ये जो है जनाब कमूसल किताब देख लें आप, ये मेरे पास नहीं है अभी, आप देख लें। बताएं अगर यार, बात किसके ना हो, बाद में सुन लें, 7 साल पहले मर गया वो था? कहते हैं जी कैलेंडर बनाने में 4 से 5 साल से गलती हुई है, ये तो पहले ही मर चुका था। अब मेरी बात सुने कैलेंडर के जी बारे में। जी, ये एक मिनट नहीं, पहले कैलेंडर एक की बात। मिनट एक मिनट जनाब सैमसन साहब जी सर, यहाँ कुछ स्टेज ड्रामा चल रहा है सर मैं नहीं यार, आप बच्चे हैं यार, संजीदा हो नहीं तो आपसे संजीदा हो। मुखातिब नहीं। आप चैलेंज करते हैं जी मुझसे मुनाजा करें और आप मतलब लड़ रहे हैं। आप उनसे बात नहीं यार, आप हंसा क्यों रहे हैं? मैं मेरी अच्छा। बात उनसे हो रही है, आप हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। मेरा मजाक उड़ा रहे हैं या उनका उड़ा रहे हैं? ये कौन सा तरीका है यार? संजीदा हो रहे हैं। हकीम आप साहब, बड़े हो गए अच्छा हैं, अपनी उम्र से सैमसन बड़े साहब, ये कौन सा- अच्छा और ना करो यार। ये बात सैम भाई ना करो, ठीक है। ये तरीका अच्छा ना ओ पाजी, सवाल करे मेरी बात। और सैम साहब, सैमसन भाई, बस ठीक है, हो गया। कौन सा तरीका है? मैं हाँ जी, बात है भाई, ये कौन सा तरीका? अच्छा चलो सैमसन भाई ना तो मेरे करो, भैया ना आप तो करो। कहते हैं कि मुझसे डिबेट करें, तो ये डिबेटर का ये रवैया होता है, मुझे ये बताओ। अच्छा नहीं, मेरा नहीं, सैमसन भाई ना, छोड़ छो यार, इस गल नूं छड्डो यार, इस गल नूं वाइंड अप करो यार। पेशाब, हाँ कह दस के लिए। आप मेरे भैया, हम आपकी इज्जत करते हैं, हम चाहते हैं आप बड़े डिबेटर बने। आपका रवैया वो नहीं ना होता, कोई बात ठीक है ना जी? आप मतलब थोड़े संजीदा हो जाए, बड़े हो जाए, आपको नहीं, आपकी हर बात ये अच्छी बात है कि कोई भी बंदा हो, किसी का रिएक्शन जो है, ये कौन सा तरीका है कि आप उधर दो बंदे बैठे हो, पाजी साहब को देख के करें हाँ अच्छी बात मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, मुस्कुराना। सॉरी सॉरी उसको। हाँ। अच्छा, हमारा जवाब ये है कि इसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। अच्छा आपका क्रॉस है, कोई मतलब जुगाड़। नहीं, जुगाड़ क्या है? अच्छा, क्रॉस 2 हो चुका हुआ पूरे हो है। गए? हकीम साहब का क्रॉस 2 भी हो चुका हुआ पूरे हो है। गए? हाँ जी, 20 वो पूरे चुका, हो गए। वो अभी यात्रा वाला बताओ। अच्छा अच्छा, वो हवाला सुन लिया क्या? वो कहने ने अभियातर और अफीम अलग वाला। यार आप एक मिनट सर। पेज टर्न कर देना था ना, निकाल लिया आपने। गर्मी ज़्यादा महसूस हो रही है, क्योंकि वहाँ रज़ाइयाँ लेके सो गए, यहाँ देखे तो पीने की जरूरत उधर बुला लें हमें, उधर बुला लें। नेक्स्ट टाइम ये सर 15 जो भी सर, ठीक है, और सदूक भी और उसके साथ सब लाभी खुदा के है किस मदद के लिए हुए आए और उन्होंने खुदा के संयोग रखे और ये 72 ऊपर चलते नहीं सरदार का हाँ, वो खुदा
तो ये सर ये दूसरा हवाला है, दूसरा सैंपल। वाली साहब को दे पढ़ दें। मैंने तो पढ़ नहीं, लिया। आप पढ़ दें आप सर। पढ़ वो लें। सारा कैमरे में पढ़ दें, आप पढ़ दें। ये देखें, ये 15 की 24 है। ये देखें, ये 72 जो खिताब कर रहा है ये सरदार का है ना, बाकी सब काहिन नीचे खड़े हैं। जी पढ़ दें। ये हकीम साहब दूसरा सैमुअल जी उसका 15वां बाब है, जी 24वीं आयत से है। जी और सदूक भी और उसके साथ सब लावी खुदा के अहद का संदूक लिए हुए आए, और उन्होंने खुदा के संदूक को रख दिया, और अबियातर ऊपर चढ़ गया, और जब तक सब लोग शहर से निकल न आए वहीं रहा। तब बादशाह ने सदूक से कहा, खुदा का संदूक शहर को वापस ले जा। पस अगर खुदावन के करम की नज़र मुझ पर होगी। हो गया ना अभी क्या? अबियातर सर जी रोटियां खाई हैं उसके ज़माने में, वो पढ़ ये दें। उसके ज़माने में और सरदार भाई बंदा सरदार का है ना, किसके ज़माने में? अबियातर सरदार का के है ना। ज़माने का ये वाक़या एक मेरे कहने पे आप पढ़ेंगे, ये निकालें, एक सैमुअल 21:2-4 पढ़ दें बस, पढ़ दें ना जिस तरह ये पढ़े ना आपने वो। एक सैमुअल 21:2-4 पढ़ दें वहाँ सरदार का इनको सर, ये पढ़ दें ना। सरदार काहन की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ किसके ज़माने में वाक़या पेश आया है। अबियातर काहन के ज़माने में, अखी मलक काहन के ज़माने में। आखिर मलक काहिन था, सरदार काहिन नहीं था। सर वाक़या किसके ज़माने में पेश आया है? तो अगर सरदार काहिन मौजूद है, एक बंदा डीसी है और एक सर एसएचओ, मौजूद ही नहीं। पढ़ दें सर, एक सैमुअल 21:2-4 पढ़ दें। यहाँ पे वो क्यों कर इबियातर सरदार काहिन के दिनों में, ठीक है, सरदार काहिन के दिनों में, यहाँ पे काहिन का तो कहीं जिक्र नहीं। हाँ सरदार काहिन की बात है। ये पढ़ देंगे, एक सैमुअल नहीं निकल रहा, हाँ जी। पढ़ दें जरा एक सैमुअल अच्छा पहला सैमुअल है 21वां बाब। 2 तक पढ़ेंगे। 2 और दाऊद नोब से अखी मलक काहिन के पास आया, जी जी और अखी मलक दाऊद से मिलने को कांपता हुआ आया, जी और उससे कहा, तू क्यों अकेला है जी और तेरे साथ कोई आदमी नहीं? दाऊद ने अखी मलक काहिन से कहा कि बादशाह ने मुझे एक काम का हुक्म करके कहा है कि जिस काम पर मैं तुझे भेजता हूँ और जो हुक्म मैंने तुझे दिया है वो किसी शख्स पर ज़ाहिर ना हो। सो मैंने जवानों को फ़लाँ फ़लाँ जगह बिठा दिया है। बस सब तेरे यहाँ क्या है? बस अब तेरे यहाँ क्या है? मेरे हाथ में रोटियों के 5 गिर दे, या जो कुछ मौजूद हो दे। जी आगे अगली है। रोटियां तो आ गई ना। काहन ने दाऊद को जवाब दिया, मेरे यहाँ आम रोटियां तो नहीं है। हाँ जी, वो काहिन का जिक्र आ गया ना। अखी मलक, लेट मी अखी मलक काहिन। यार लेट मी सर यही मेरा, ओ भाई यही मेरा लेट ख्याल मी है। एक्सप्लेन। अच्छा, चलो। अखी मलक का है। अखी मलक सरदार काहिन नहीं था, वो काहिन था, और ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि एक ही वक्त में वो सरदार काहिन था और ये काहिन था। तो सर इसमें ये क्या अखी मतलब? मलक और अबियातर, बाइबल ने अबियातर का है कौन? अखी मलक और अबियातर है कौन? एक काहिन है, एक सरदार काहिन है। क्या भाई, रिश्ता क्या है इनका? लोग वो तो काहिन है, वो उसका जूनियर है, वो उसका सुभान सीनियर है। अल्लाह। हाँ, बाप फिर- पुत्र जे जनाब की अच्छा, कर रहे फिर हो? चलो तो बाप दोनों- बेटा है। अच्छा बाप बेटा उस दोनों। बाप के बाद बेटा बन रहा है, बाप के बाद। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। 2 सैमुअल 8:17 पढ़ लें। अखी तूब का बेटा सदूक और अबियातर का बेटा अखी मलक का। अच्छा, अगर आपको इसके अलावा सबूत दे दें कि बाप बेटा यक वक्त थे, क्या फिर क्या काहिन और तो सरदार सर काहिन। मैंने ये पूछा किसके ज़माने में पेश आया, वो उन्होंने पढ़ तो दिया। यार बात अगर खत्म हो दोनों गई। मौजूद है तो दोनों दूसरा का मौजूद है तो दिखा दे, दूसरा मौजूद है तो दिखा दे। बता वाला। मैंने भी चले। बता दिया। हाँ वो जी, भी पढ़ दिया। हकीम साहब वो 20 फिर सवाल हो understanding- चुके हैं, 20 सवाल हो चुके हैं। आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक बात की। पादरी नहीं, साहब आपके ने 20 सवाल मेरी तरफ से ऑफर है। कोई बहुत खास सवाल है तो एक आध वो भी पूछ ले, मुझे अब कोई मतलब नहीं नहीं मैं पूरे 20 चलें 20 सवाल, Next- 20 सवाल next पर। हकीम साहब। हाँ जी, नेक्स्ट जो आपने 50 सवाल बताए हैं जी। कि जी नेक्स्ट मैं पूछना चाहता हूँ। इख्तितामी जुमले के दो में तुसी बोलना है। आप सबकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। आज का हमारा मौजू था मैं मसीही क्यों हूँ, जिस पर हकीम साहब
किताब मुक़द्दस में से 20 सवाल पादरी शफीक साहब से उन्होंने पूछे और पादरी शफीक साहब ने 20 सवालात के जवाब दिए। हम हकीम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो गुजरांवाला से आए और उन्होंने अपना वक्त दिया और क्रिश्चियन डिबेट एकेडमी के प्लेटफार्म से इस मनाजरे का और इस मनाजरे के इस मुनफरद तरीक़ाकार का इख्तिताम हुआ। मनाजरा इख्तिताम को पहुंचा। हाँ जी, ये बोले ना कि उम्मीद है कि ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा और इसी मौजू पर रहते हुए आगे आने वाले वक्त में डॉक्टर यूनुस असरी साहब भी इस मौजू पर गुफ्तगू करना चाहते हैं और इस पर हकीम साहब जी इस पर हकीम साहब इख्तितामी जुमला छोड़ देना बात। मैं कह नहीं वो मैं कह देता हूँ। वो आप कहेंगे तो फिर मैं भी कहूँगा, फ़ायदा नहीं ना। मैं तो ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਹੀ ਉਹ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਵਾਂਗੇ। अच्छा ठीक है। अच्छा ये हो गया, आप भी 2 मिनट बाद कर दें, मुझे भी कर दें। क्लोज कर वैसे बातें करेंगे। हाँ जी वो सैमसंग से जो बात